Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to the Prime Skills once again. So, this is lecture number 3 of unit number 4, and the name of the lecture is Oral Communication. और यूनिट का नाम है प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स. ठीक है, इससे पहले हम अपने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस किया था. तो इफ यू हैवंट वॉच्ड दोस सेशंस, मेक श्योर दैट यू वॉच देम. Once again, if you have not subscribed the channel, make sure that you subscribe the channel and hit the bell icon so that you can keep on getting the notifications for all the videos which I keep on posting over here. So I keep on posting the videos related to your communication skills, your personality development, your vocabulary development, your soft skills, your spoken English. So if you really want to establish yourself as a good communicator and if you really want to become confident, make sure that you hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications and you keep on learning with me. All right, so let's go ahead without further ado and just start discussing about today's topic, which is oral communication. So our today's topic is oral communication, my dear students. और ये हमारा यूनिट 4 प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स का पार्ट है. दिस इज BS 105 कोड. दिस इज द लेक्चर नंबर 3 and this is a new syllabus which was recently released in November 2022. So let's go ahead and start discussing about our today's topic, oral communication. So this is the syllabus. हम ये वाला जो पार्ट है, I mean like the presentation strategies, planning, preparation, organization and delivery, हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं. Now today we are going to discuss about this part, which is the introduction to oral communication. Oral communication के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं oral communication को. So oral communication is the process of verbally transmitting information and ideas from one individual or group to another. जब आप कभी भी अपने आइडियाज और थॉट्स को वर्बली बोल के किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ओरल कम्युनिकेशन. ओके, ओरल कम्युनिकेशन कैन बी ईदर फॉर्मल और इनफॉर्मल. इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल का मतलब जब आप ऑफिस में अपने बॉस से या फिर किसी मतलब लाइक सिंपल ऑफिस में किसी से भी किसी कलीग से बात कर रहे होते हैं, कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग बात कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो जहां पे आप अपने परिवारजनों से बात कर रहे होते हैं, जिसमें फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, जिसके अंदर आपका इनफॉर्मल वोकैबुलरी इन्वॉल्व होती है, वो सारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. So example of informal oral communication can include face-to-face conversation. For example, you're talking to your friend, you're talking to your family members. Telephonic conversation, if somebody is calling you, maybe your brother, your sister, your mother, your father, or maybe somebody who is somehow related to you as a friend. Discussions that take place at business meetings. अगर जो बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, आई होप ये बिजनेस मीटिंग्स वाला तो फॉर्मल की कैटेगरी में आएगा. यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे कभी कभी गलती हो जाती है, तो वो फॉर्मल की कैटेगरी में आएगा, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होगा. ठीक है, अच्छा. और दूसरे आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं? प्रेजेंटेशंस एट बिजनेस मीटिंग. आपका जब बिजनेस मीटिंग में आप ओरली कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. क्लासरूम लेक्चर आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. कमेंसमेंट स्पीचेस गिवन एट द ग्रेजुएशन सेरेमनी, दे also belong to the formal communication category. Oral communication implies communication through mouth. When you are delivering something through your mouth, it includes individual conversation with others, be it direct conversation or telephonic conversation, speeches, presentation, discussions, and all forms of communication. Okay, we have already discussed about it. Oral communication is generally recommended when the communication matters is of temporary kind and where the direct interaction is required. जब आपका जो कम्युनिकेशन है वो टेम्परेरी हो. टेम्परेरी मतलब जिसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने की कोई आवश्यकता ना हो. हालांकि आजकल आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, बट अगेन इट इज नॉट जनरली रिकमेंडेड और इट्स नॉट जनरली प्रैक्टिस्ड. ओके, तो जब टेम्परेरी हो और डायरेक्ट इंटरेक्शन आप करना चाहते हो, तब आपका बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन यूज में आता है. Face-to-face communication, meeting, lectures, conference, interviews is significant so as to build a rapport and trust. और important बात यह है कि ओरल कम्युनिकेशन जो होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो होता है, वो सबसे ज्यादा रिलायबल टाइप का कम्युनिकेशन माना जाता है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग रैपो एंड इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग रिलेशनशिप. अगर आप किसी व्यक्ति के साथ कोई भी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसीलिए आपने देखा होगा मीटिंग्स जो होती हैं, जो हाई लेवल की बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, जहां पे बहुत ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे एक दूसरे को समझने की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमेशा फेस टू फेस ही होते हैं. ठीक है, एडवांटेजेस क्या होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के? ओरल कम्युनिकेशन इज मोर पर्सनल एंड लेस फॉर्मल देन रिटन कम्युनिकेशन. पहली बात तो ये फॉर्मल होता है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन जितना फॉर्मल नहीं होता. रिटन हमेशा देखिएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन में रिटन कम्युनिकेशन को वरीयता दी जाएगी, उसको हमेशा प्रेफर किया जाएगा. और ये पर्सनल होता है, काफी हद तक पर्सनल होता है, क्योंकि इसमें आप सामने वाले व्यक्ति के क्लोज जाके बात कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस को पढ़ सकते हैं, उसकी आई कांटेक्ट बना के उसकी आंखों से समझ सकते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा है. सो दैट इज मोर पर्सनल.
If time is limited and business matters requires quick resolution, it may be best to have a face-to-face or telephonic conversation. अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है तो रिटर्न कम्युनिकेशन में क्योंकि टाइम लगता है उसके पहुंचने में, उसके आंसर आने में टाइम लगता है, जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है वो फटाफट से हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है या ओरल कम्युनिकेशन जो होता है उसको प्रेफर किया जाता है अगर आपको क्विक सॉल्यूशन चाहिए। There is also more flexibility in oral communication. You can discuss different aspects of an issue, make decisions more quickly than you can in writing. यहाँ पे flexibility भी काफी हद तक होती है। आपने जो एक बार लिख दिया वो लिख दिया, उसको उसको वापस नहीं बुला सकते, उसको सही नहीं कर सकते, लेकिन आपने कुछ गलती से कुछ गलत बोल दिया तो आप सॉरी बोल के तो बोल सकते हैं कि इट वाज नॉट माय इंटेंशन, और द फीडबैक जो होगा वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी काफी होती है। ओरल कम्युनिकेशन कैन बी स्पेशली इफेक्टिव इन एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रॉब्लम। अगर आप कभी भी कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली आप एड्रेस करना चाहते हैं, देन ओरल कम्युनिकेशन इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट एफर्ट। टॉकिंग थिंग्स ओवर इज ऑफन द बेस्ट वे टू सेटल डिसएग्रीमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी डिसएग्रीमेंट हुआ है तो उन दोनों को मिलकर बात करनी चाहिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट डिसएग्रीमेंट कैन बी डिसॉल्व्ड। Finally, oral communication is a great way to promote employees' morale, maintain energy and enthusiasm within a team. आपकी टीम में एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए आपका वो वोकल कम्युनिकेशन या वर्बल कम्युनिकेशन, और रादर आई शुड से द ओरल कम्युनिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। There is a high level of understanding and transparency in oral communication as it is interpersonal. यहाँ पे एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होती है और एक बहुत ही अच्छी ट्रांसपेरेंसी होती है, क्योंकि ये एक इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। There is no element of rigidity in the oral communication. फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम पहले इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। Feedback is spontaneous in case of oral communication. Decisions can be made quickly without delay. This point has already been discussed. Oral communication is not only time saving but it also saves money and efforts. पैसे भी बचाता है, एफर्ट्स भी बचाता है, टाइम भी बचाता है, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन इज बेस्ट इन केस ऑफ द प्रॉब्लम रिजोल्यूशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स एंड मेनी इश्यूज, डिफरेंसेस कैन बी पुट टू एंड बाय टॉकिंग देम ओवर। ओरल कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर टीम वर्क एंड द ग्रुप एनर्जी, ओके। ओरल कम्युनिकेशन प्रमोट्स अ रिसेप्टिव एंड एनकरेजिंग मोरल अमंग ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में एक मोरल डेवलप करता है। कैन बी बेस्ट यूज्ड टू ट्रांसफर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और मैटर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ओरल कम्युनिकेशन के? अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शन इन बिजनेस वर्ल्ड रिक्वायर्स सम टाइप ऑफ रिटन रिकॉर्ड। इवन स्ट्रॉन्ग वर्बल स्किल्स आर नॉट सुटेबल फॉर पुटिंग थिंग्स इन राइटिंग। आप चाहे कितने भी अच्छे हो बोलने में, इंग्लिश बोलने में या कोई भी किसी भी लैंग्वेज को बोलने में, ये हमेशा इंश्योर नहीं करता कि आप अच्छे तरीके से लिख भी सकते हैं। लेकिन कुछ बिजनेस कम्युनिकेशंस में हमेशा राइटिंग में रिकॉर्ड चाहिए होता है इन ऑर्डर टू कीप द मेंटेन दैट रिकॉर्ड, और वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपका ओरल कम्युनिकेशन कितना भी अच्छा हो, राइट, बिजनेस में जरूरी नहीं है कि आप वहां पे फिट हो पाए, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन मैक्सिमम केसेस में रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर रिलाई करता है। Additionally, oral communication tends to be less detailed and more subject to misunderstanding than written communication. Oral communication में misunderstanding के chances बहुत ज्यादा होते हैं। आपने किसी को कुछ और बोला, उन्होंने कुछ और समझ लिया, अगर आप सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में, या फिर किसी ने आपने कुछ बोला और सामने वाला व्यक्ति भूल गया, तो वहां पे भी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। वो कहेगा आपने तो मुझसे बात बोली ही नहीं थी, लेकिन अगर वो रिटन है देन ही कांट से दैट। सो रिटन कम्युनिकेशन में काफी हद तक आपकी रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, बट यहाँ पे क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। Relying on an oral communication may not be sufficient as business communication is formal and very organized. बिजनेसेस में कभी भी आप ओरल कम्युनिकेशन पे, केवल ओरल कम्युनिकेशन पे कभी रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे आपको एक अच्छा खासा रिकॉर्ड चाहिए होता है, एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है। Oral communication is less authentic and written communication as they are informal and not organized as a written communication. Written communication maximum cases में written communication का नेचर ही organized नेचर का होता है, लेकिन oral communication इतना organized नहीं होता और less authentic भी होता है। सामने वाले व्यक्ति आसानी से झूठ बोल सकता है, लेकिन जब वो लिख के देगा तो उस समय झूठ बोलने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि लिखा हुआ रिकॉर्ड परमानेंट होता है। Oral communication is time saving as far as daily interactions are concerned, but in case of meetings, long speeches consume a lot of time and unproductive at times. कभी कभी क्या होता है कि जब आप बोल रहे हैं तो आप अपने विचारों में अपनी वो बातें भी बोल जाते हैं जो रिक्वायरमेंट नहीं है, जो रेलेवेंट नहीं है, तो सिचुएशन में आपका टाइम लॉस होता है। मीटिंग्स में, बिजनेस स्पीचेस में, लॉन्ग स्पीचेस में यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स व्हिच आर नॉट रेलेवेंट, ओके। सो इन दैट केस, बिकॉज यू विल हैव टू जस्ट बिल्ड द रैपो, बट इन रिटन कम्युनिकेशन देयर इज नथिंग लाइक दैट। यू विल बी वेरी डायरेक्ट, वेरी पॉइंट टू पॉइंट, वेरी मच स्पेसिफिक। वहां पे आपका टाइम सेव होता है। Oral communication are not easy to maintain and thus they are unsteady. They are not easy to maintain. आपको वहां पे आइस ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। आप सामने वाले व्यक्ति को अगर नहीं जानते हैं उस सिचुएशन में, सबसे पहले विल हैव टू बिल्ड द रैपो, ओके। एंड दे आर अनस्टीडी। अनस्टीडी मतलब लाइक यू कैन जस्ट रिलाई ऑन देम ऑन अ प्रॉपर वे। वो चेंज होते रहते हैं।
सामने वाले व्यक्ति का मूड कुछ और है, आज कुछ और है, कल कुछ और था, तो कम्युनिकेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। देयर में भी मिसअंडरस्टैंडिंग एज द इन्फॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट एंड मे लैक एसेंशियल्स। आप जब ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस सिचुएशन में यू कैन नॉट जस्ट कोट ऑल द स्टैटिस्टिक्स, ऑल द आइडियाज, ऑल द एग्जांपल्स, यू विल हैव टू बी लिमिटेड, बट रिटन कम्युनिकेशन में सब कुछ हो सकता है। इट रिक्वायर्स अटेंटिवनेस एंड ग्रेट रिसेप्टिविटी ऑन पार्ट ऑफ द रिसीवर्स एंड ऑडियंस। जब आप किसी व्यक्ति के साथ ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को अटेंटिव होना, एक गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ही वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द नुएंसेस ऑफ योर मैसेज। Oral communication such as speeches is not a frequently used legal records except in investigation work। जो oral communication आप करते हैं ना, वो एक legal work की तरह accept नहीं किया जाता, but written communication legal work की तरह accept किया जा सकता है, उसको as a proof और as a record उसको हमेशा maintain किया जा सकता है। The elements of oral communication involved. What are the elements of oral communication? Number one, a sender। ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन कभी भी पढ़ते हैं ये चीजें हम हमेशा डिस्कस करते हैं। एक सेंडर जो मैसेज को कन्वे करता है। अ मीडियम, अ मेथड ऑफ मैसेज ट्रांसमिशन सच एज इन पर्सन, वीडियो कॉल और वॉइस नोट। तो पहला चीज हो गई आपका सेंडर, दूसरी चीज हो गई आपका मीडियम, तीसरी चीज हो गई आपका मैसेज, द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, और चौथी चीज हो गई आपका रिसीवर विच एक्वायर्स और रिसीव्स द मैसेज। ओके, ओरल कम्युनिकेशन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन डिफरेंट होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन एंड ओनली रेफर्स टू द स्पोकन कम्युनिकेशन, बट ओरल कम्युनिकेशन आल्सो इन्वॉल्व्स द नॉन वर्बल, यानी ओरल कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आ जाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन की। ओरल कम्युनिकेशन यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस इन द वर्कप्लेस इज अ फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन। जनरली द टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड, मीटिंग्स में आप यूज कर सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन, डिस्कशन, फेस टू फेस स्पीचेस, इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन, एलिवेटर पिचेस, प्रेजेंटेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस एंड सो ऑन। सो देयर मे बी सो मेनी डिफरेंट सिचुएशंस जहां पे आप ओरल कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। अब हम बात करते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और कौन कौन से ओरल कम्युनिकेशन के स्किल्स होते हैं। अगर आप ओरल कम्युनिकेशन अच्छा बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से स्किल्स आपको गेन करने चाहिए। नंबर वन, सबसे पहली बात, ओरल कम्युनिकेशन कैन बी ट्रिकी, वन रॉन्ग वर्ड कैन ऑफेंड समबडी। अगर आपने कुछ भी एक गलत शब्द बोला, सामने वाला व्यक्ति इसका बुरा मान सकता है, तो ओरल कम्युनिकेशन काफी ट्रिकी होता है, राइट। द स्पीकर मे हैव बीन अनक्लियर व्हाइल कम्युनिकेटिंग, द स्पीकर माइट हैव कम ऑफ रूड इवन दो दे डिडंट मीन इट। आप किसी व्यक्ति के सामने बात कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और सामने वाले व्यक्ति को लगेगा यार ये तो बड़ा रूडली बात कर रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा और सामने वाले व्यक्ति को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, आपको लग रहा है कि उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ओरल कम्युनिकेशन ट्रिकी हो सकता है। To avoid misunderstanding and to ensure that message are well communicated, possessing the following skills will help। अगर आप मैसेज को अच्छे तरीके से ओरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, फॉलोइंग स्किल्स कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्किल्स। नंबर वन, एक्टिव लिसनिंग। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ओरल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एक्टिव लिसनिंग इज अ मस्ट फॉर यू। While communicating orally, it is fundamental to spend as much energy on active listening as we would on एक्टिव स्पीकिंग। जितना हम बोलने में अपनी एनर्जी स्पेंड करना चाहते हैं, उतना ही हमें सुनने में भी स्पेंड करनी चाहिए, बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट, वी वुड नॉट बी एबल टू गो थ्रू दैट ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। To help the receiver actively listen to the speaker, try to avoid distractions. As a speaker, you should also try to, as a speaker also, as a listener also, you should try to avoid distractions. Phones को साइड रख दीजिए, कोई मतलब अपना ध्यान केवल पूरा उस कॉन्वर्सेशन के ऊपर ही रखिएगा, जिससे कि आप अच्छी तरीके से ओरल कम्युनिकेशन कर पाए। कीप एन ओपन माइंड, अपने माइंड को हमेशा ओपन रखिएगा। डू नॉट बी distracted by the biases or the stereotypes. Understand the speaker's objective and later frame the questions rather than when they're expressing their thoughts and ideas. जब सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा है और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, make sure you write it down. Don't simply just throw the question in between, because it will disrupt the flow of that person. He might be having a very good flow of ideas. जैसे ही आप उसको डिस्टर्ब करेंगे, सामने वाला व्यक्ति काफी आपके आइडियाज जो है काफी डिस्टर्ब हो सकते हैं और वो व्यक्ति उन काफी इंपॉर्टेंट चीजें भूल सकता है। तो मेक श्योर कि आप अपने क्वेश्चंस को एंड के लिए रेडी रखें जब आपसे कहा जाए। Number two is the questioning. Make sure that you are ready to ask a lot of questions. It's common to have unanswered questions after someone has spoken. कुछ ना कुछ questions जरूर आपके होंगे। Asking questions to avoid any misunderstanding is crucial for oral communication. It can also be conversation starter in some case. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछें, बट नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक और डायमेंशन इन अ वेरी क्लियर वे। द क्वेश्चंस कैन बी ओपन एंडेड और क्लोज्ड। क्वेश्चन ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर आपको थोड़ा डिटेल में देना होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको यस और नो में आंसर देना होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपका नाम राहुल है, आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आप यस और नो में जवाब नहीं दे सकते, आपको डिटेल में बोलना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द ओपन एंडेड क्वेश्चन।
Number three is understanding non-verbal cues. You need to understand the non-verbal cues of the speaker if you really want to understand, or even as a speaker also you need to understand the non-verbal cues of listener कि क्या वो आपकी बात में interested है कि नहीं है. One's posture, facial expressions, body language and other non-verbal cues can help other understand how they are feeling. Whenever you are talking, how they are feeling, how the person is feeling. He might not tell you directly, but you will have to understand that part. It can help determine if the listener understands the conversation's goal. इससे आपको ये भी पता लगता है कि जो आपका लिसनर है क्या वो आपकी बात को, आपकी कॉन्वर्सेशन की गोल को समझ पा रहा है. अगर आप उस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देख रहे हैं, उसके नॉन वर्बल क्यूज को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं और व्यक्ति इधर उधर देख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपकी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है. देन यू शुड नॉट ट्राई टू पुट मच एफर्ट, और रादर यू शुड ट्राई टू चेंज योर स्ट्रेटेजी. Non-verbal cues can be very loud when carefully observed. अगर आप ध्यान से देखें तो non-verbal cues आपको बहुत सारी बातें बता सकते हैं. A conversation's tone and personal appearance are also considered non-verbal cues. आपका personal appearance कैसा है, आपका बॉडी ऑर्डर प्रॉब्लम तो नहीं है, आप कितना पास बैठे हैं, आप किस टाइम पे आए हैं, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप खड़े हैं, आप बैठे हैं, हर चीज का, आपकी बॉडी पोस्चर का, आपकी ड्रेसिंग सेंस का, हर चीज का फर्क पड़ता है आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर. ठीक है. Then listeners who sit straight appear interested and attentive, while those who slouch appear bored and inattentive. The speaker will have to make the session more engaging in such case. अगर आपका सामने वाला व्यक्ति जिसको आप बोल रहे हैं वो स्ट्रेट बैठा हुआ है, अटेंटिव बैठा हुआ है, तो वो इंटरेस्टेड होगा, राइट. लेकिन अगर वो झुक के बैठा है, स्लाउच करके बैठा हुआ है, उस सिचुएशन में क्या होगा कि लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि द पर्सन इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट एंड यू शुड ट्राई टू इंक्लूड सम मोर थिंग्स सो दैट द पर्सन कैन फील इंटरेस्टेड. Okay. Then number 4 is clarifying. As a speaker, it becomes your moral responsibility, or rather I should say it's a very important responsibility for a communicator to clarify the message. Even after actively listening to the speaker, some points may be unclear. अगर आप लिसनर हैं तब भी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चीजों को क्लैरिफाई करें, क्योंकि it's always better to ask for the clarification rather than having the wrong message. Okay. It's always better to ensure that the receiver has understood the task correctly to avoid problems in the future. जब आप सामने वाला व्यक्ति को आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मेक श्योर कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से बातें समझ गया हो. A speaker may also be able to learn to communicate points more effectively through clarification. So clarification is very important, both the sides. I mean, like for the listener also and for the speaker also. How can you clarify? You can ask questions like, could you please repeat what you said about this? For example, if I'm talking about oral communication, then you can ask me the question, sir, could you please tell me that what do you mention about the oral communication? That is the way of clarifying. As a listener, I did not completely understand what you said about this. Could you please repeat that? So these type of questions can ask a speaker, or can enforce a speaker to just go ahead and clarify the concept. Number 4 is reinforcing. What is the reinforcing? Encouraging the discussion and the speaker using non-verbal cues is known as the reinforcement. जब आप सामने वाले व्यक्ति, यानी जब आप लिसनर से अपनी जिस चीज के ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हैं उसको और डिस्कस करने का एक अपॉर्चुनिटी देते हैं उनको, या फिर आप बेसिकली जो स्पीकर होता है जब वो नॉन वर्बल क्यूज को यूज करता है तो वो आपका रीइंफोर्समेंट कहलाता है. देखिए, एक तो होता है कंटेंट, आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं लेकिन उसको आप बैकअप दे रहे हैं नॉन वर्बल क्यूज के माध्यम से, और उसको एक दूसरा बैकअप दे रहे हैं आप सामने वाले व्यक्ति को डिस्कशन की अपॉर्चुनिटी देके. तो ये दोनों चीज मिलके आपके कंटेंट को, आपके मैसेज को रीइंफोर्स करने का काम करते हैं, उसको और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने का काम करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट. It involves maintaining eye contact, nodding your head in agreement or disagreement and so on. So make sure कि non-verbal cues तो हमेशा बैकअप करेंगे ही करेंगे, तो उनको आप अच्छे से वहां पे एग्जिबिट करें. It displays the receiver's interest and boosts the speaker's confidence. अगर एक रिसीवर या ऑडियंस जो है वो अच्छा बॉडी लैंग्वेज साइंस शो कर रहा है, then it shows that person is actually taking interest in your content. Reinforcement encourages participation in the conversation and builds rapport among the group. Reinforcement से आपका मतलब जो पार्टिसिपेशन है वो तो होता ही होता है, साथ में आपकी जो ऑडियंस के साथ है या ऑडियंस की जो स्पीकर के साथ है वो अच्छी खासी एक रैपो बन जाती है, एक रिलेशनशिप बन जाती है. ओरल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज में लास्ट हमारे कुछ पॉइंट्स हैं. इट इज एसेंशियल टू एंश्योर द मैसेज इज रिसीव्ड क्लियरली एंड करेक्टली. देयर आर फ्यू स्ट्रेटजीज दैट विल हेल्प यू अचीव दिस गोल. कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं? नंबर 1, मेक द ऑब्जेक्टिव क्लियर. सबसे पहले एज ए स्पीकर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट मेक द ऑब्जेक्टिव क्लियर, व्हाट यू रियली वांट टू टॉक अबाउट, व्हाई यू रियली वांट टू टॉक अबाउट. ओके, if that resonates with the audience will definitely listen to you. It becomes easier for the receiver to receive and understand the information delivered if they know why they are receiving it. सामने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि आप उसको ये बात की बोल क्यों रहे हैं. Number 2, comprehensive delivery. Make sure that whatever you're delivering is absolutely comprehensive, detailed and elaborate so that the person can actually get the entire idea. Then deliver factual information. कभी भी केवल
छोटी ऐसी इन्फॉर्मेशन, थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन देने से कभी कुछ नहीं होता, राइट? मेक श्योर कि आप उसके अंदर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर फैक्ट इंक्लूड करें, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड करें, उसके अंदर डेटा इंक्लूड करें, सो दैट द पर्सन कैन रिलाई ऑन दैट. Okay, the credibility can be maintained. Deliver complete information. Never try to deliver incomplete information, because if you deliver the incomplete information, the the audience will never have reliability on you. They will never try to listen to you again in future. Okay, so make sure that you have the complete information. Be mindful of the tone. Whatever you are speaking, your tone should be maintained. टोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी कम्युनिकेशन में. आप रूड टोन में बात कर रहे हैं, आप डिस्गस्टिंग टोन में बात कर रहे हैं, आप सामने वाले के लिए इंसल्टिंग टोन में बात कर रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज टॉकिंग इन रेस्पेक्टफुल टोन. You are always talking in a tone which is pleasing to the audience. Okay, and then be honest. Whatever you are delivering, whatever you are telling, or whatever you are actually communicating, make sure that you are honestly communicating that. Do not try to hide something. Do not try to be non-transparent or intransparent. That will always put your audience away from you, and that will never help you out. Okay, so that's it, my dear students. I hope that you understood the topic, and if you have any doubt, make sure that you pick it out and you just bring it to my notice. Make sure that you also subscribe the channel and hit the bell icon so that you can keep on getting all the notifications related to all the videos. Once again, please do comment, do subscribe, and do share. And if you really want me to just put some more topics or whatever you are interested in, make sure that you put it in the YouTube comment box or WhatsApp or through the Telegram channel. You can connect with me through any of them. Okay, so thank you so much for reaching up here. I hope that you are actually understanding, and see you in the next video. Have a good day ahead.